Today the class trigonometrical standard angle ratio that helps in calculate the trigonometrical identities, height and distance, and the ratios problem. So we come to know about some identical standard identities as 45 degree, 30 degree and 60 degree of their standard form. For example, you have some problem, sin 45 degree, 45 degree equal to what? Tan 45 degree equal to what? Cos 45 degree equal to what? So this trigonometrical some identical angles ratios help us to calculate it in easy form. Suppose त्रिकोणमितीय अनुपात में यदि 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल के मानों को यदि हम जानते हैं तो इससे संबंधित जो आइडेंटिटीज होंगे, वैल्यू ऑब्टेन करने के होंगे या रेशियोज प्रॉब्लम होंगे, उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। माना कि ABC is a triangle whose angle C is 45 degree, angle A is 40, angle C is 90 degree, angle A is 45 degree, and ABC is a right angle triangle whose BC and AC sides are equal. आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल ये है जिसमें C 90 डिग्री के हैं और एंगल A 45 डिग्री के हैं. So we can write if BC and AC is equal, BC and AC is equal, that side value is x cm, then angle A is equal to angle B, that is 45 degree. This is the geometrical आइडेंटिटीज. ज्योमेट्री से हम लोग जानते हैं कि दो भुजाएं अगर आपस में बराबर हों और दोनों भुजाएं एक दूसरे पर यदि लंब हो तो उनके रेस्ट जो दोनों एंगल होते हैं वे 45 डिग्री के होते हैं. वे 45 डिग्री के ही होंगे. अर्थात पाइथागोरस के थ्योरम से, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, we know that hypotenuse square equal to p square plus b square. It is the formula of or theorem of Pythagoras. According to the figure, if this side is equal to this side, then their value AC and BC both are equal, that is xcm. Hence h square equal to x square plus
x square, that is 2x square. Hence h equal to under root 2x cm, 2x cm. Now we come to know the sixth angle about sine 45 degree. As we know, sin theta equal to होता है P by H. Here perpendicular is BC and H hypotenuse is AB. That's value is here root under 2x cm. So we write AB in place of H. Now put the value of BC equal to x and we find here AC equal to root under 2x, then x upon root under 2x. x एलिमिनेट कर देने पर साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, 1/2. Similarly, in cos 45 degree, 45 degree is according to formula B by H, that is AC upon AB. Here the value is x upon root under 2x. This x eliminated, then it become 1 upon under root 2. Here tan 45 degree equal to P by H, that is BC upon P by B, BC upon AC, that is x upon x, that is 1. These three are the fundamental angles of a triangle sine, cos, tan. Their derivatives and opposite angles are given here. So come to know साइन का अपोजिट एंगल कोसेक होता है, कोसेक 45 डिग्री. दैट मीन्स h by p, that is AB upon BC, that is root under 2x upon x, that is root under 2. Just opposite the value of sine 45 degree, cos 45 degree. Now cosec, cos 45 degree, the opposite relation is sec 45 degree. Here cos 45 को हम b by h लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे हम h by b, that is AB upon AC, that is root under 2x upon x, x cancel, root 2. Tan 45 degree opposite angle is cot 45 degree. It means B by P, just opposite to the this P by B, the ratio of tan, and here ratio become B by P, ratio of cot, that is AC upon BC, that is x upon x, that is 1. By this figure
ABC is a right angled isosceles triangle whose BC is equal to AC. Their value is x that can be considered. हम ABC आइसोस्केल समकोण त्रिभुज में BC और AC दो समान भुजाओं के साथ जब एक ट्रायंगल बनाते हैं तो इसके अपोजिट एंगल A और एंगल B का मान 45 डिग्री होगा। उसी के आधार पर हम साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट की वैल्यू निकालते हैं, जो बताती है कि साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, जस्ट अपोजिट कोसेक 45 डिग्री √2, सेक 45 डिग्री √2. Here 10 the smallest angle whose value become 1 and 1. Now come to know about the angle determination of 30 degree and 60 degree. 30 degree and 60 degree of a triangle. This value is very applicable to calculate the trigonometrical ratio and their values. So we come to study about 60 degree and 30 degree. For this 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम एक दूसरी ट्रायंगल का सहारा लेंगे और वह दोनों ट्रायंगल आइसोस्केल ट्रायंगल ही होंगे। आइसोस्केल ट्रायंगल ही होंगे जिसके वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर खींचा जाता है। सपोज दिस इज ABC is a triangle whose midpoint is D. Here 90 degree and here 90 degree. This AB and AC is the hypotenuse of the triangle ADC and ADB. ADC and ADB. Suppose दिस ये 30 डिग्री के हैं और ये भी 30 डिग्री के हैं, तो 90 और 30 120, और तो ये 60 डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। कंसीडर, माना कि दिस इज x एंड AD इज द मिड पॉइंट, so this distance is also x. AD is a perpendicular. AD is a perpendicular. So we have to find their values. माना कि ABC एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स A से AD BC पर लंब खींचा जाता है। इस प्रकार दोनों ट्रायंगल के लिए AD 90 डिग्री की एंगल बनाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC is
equilateral triangle where AB is equal to BC is equal to AC, that is 2x। लेट यहाँ पर हम इसे मान लिए हैं, माना कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके AB साइड, BC साइड और AC साइड का वैल्यू 2x ले लिए हैं। सो BD इक्वल टू DC इक्वल टू x, क्लियर, दैट इज 2x अपॉन 2, दैट इज x। So we have 2x and 2x. We have to find AD according to Pythagoras derivative formula p square equal to h square minus b square, that is p square equal to 2x square minus x square, that is 4x square minus x square, that is 3x square. Therefore p equal to root under 3x square equal to root under 3x. The value of AD become root under 3x. Hence AD equal to root under 3x. Now we come to know to finding out the value of all the trigonometrical ratios in terms of 30 degree and 60 degree. अब हमें ट्रायंगल के मेजरमेंट के आधार पर 30 डिग्री और 60 डिग्री से रिलेटेड उसके साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। ठीक, हम सबसे पहले चलते हैं 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री के लिए अगर चलें तो आप देखते हैं कि 430 डिग्री, 430 डिग्री में हम पहला ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को लेते हैं। साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन एंगल BAD, the ratio of sine of a right angle triangle is P by H. Here P is root 3x upon 2x. X cancel, therefore root 3 by 2. दूसरा में आप देखिए cos 30 डिग्री इक्वल टू cos एंगल BAD, that is P by H, that is 2x upon root 3x. This cancel, then 2 by root 3.
third angle is tan 30 degree, that is tan angle BAD, that is P by D. P, that is root 3x upon P by D, that is x. X cancel, that is root 3. Derivatives of tan is cot 30 degree equal to cot angle BAD equal to B by P, that is x upon root under 3x. X cancel, that is 1 by root 3. Derivatives of cos, that is sec theta equal to sec angle BAD equal to h upon b, that is 2x upon x, that is 2. Similarly, अब हम साइन 30 डिग्री के डेरिवेटिव्स को देखते हैं। तो इसके डेरिवेटिव्स होते हैं कोसेक 30 डिग्री, that is cosec angle BAD, that is h upon p, that is 2x upon root under 3x. X eliminated to form root 3. These are the value of sin, cos, tan and their 30 डिग्री डेरिवेटिव्स वैल्यू। इस वैल्यू के आधार पर हम हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज एंड रेशियोज वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप में से अगर किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो you may ask questions, I repeat, and also give the simple way, but no, then I omit it. Now, अब हम 60 डिग्री के लिए चलते हैं। 60 डिग्री के लिए हम इस एंगल को लेके चलेंगे साइन कॉस टेन के लिए और उसके डेरिवेटिव्स के लिए। नाउ फ्रॉम एंगल ABD, that is 60 degree. As we know, sin theta equal to sin 60 degree, that is sin angle ABD equal to P upon H, that is the value of P root 3x upon 2x, that is root 3 upon 2. Cos cos 60 degree equal to cos angle
ए बी डी इक्वल टू बी बाय एच आधार बाय कर्ण होता है, इसलिए हम इसमें आधार के वैल्यू और कर्ण के वैल्यू को लेंगे। तो ये हो जाएगा x अपॉन 2x दैट इज 1/2। tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री दैट इज tan एंगल ए बी डी इक्वल टू पी बाय बी। यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू लेंगे दैट इज √3x अपॉन x दैट इज √3। इस प्रकार हम इसके डेरिवेटिव्स को भी निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव्स उसी साइन कॉस टेन के अपोजिट एंगुलर मेजरमेंट है, और उस एंगुलर मेजरमेंट को फाइंड करने के लिए हमें कम से कम इसी ट्रायंगल का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये भी मिल जाएगा। तो चलें हम लोग चलते हैं कॉट थीटा इक्वल टू कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री और tan एंगल ए बी डी इक्वल टू पी बाय बी दैट इज x अपॉन √3x दैट इज 1/√3। 1/√3। उसी प्रकार हम आगे चलते हैं जिसमें हम सेक को लेते हैं। सेक द अपोजिट रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ cos थीटा। सो सेक थीटा इक्वल टू sec 60 डिग्री that is sec angle ABD that is h by b that is 2x upon x that is 2. Their measurement is 2. Now cosec theta equal to cosec 60 degree that is cosec angle ABD equal to h upon p that is 2x upon √3x, x cancel then 2/√3। हम लोग 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल के मेजरमेंट को देख लिए, और इन मेजरमेंट के आधार पर ही हम बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, आइडेंटिटीज को डील कर सकेंगे। इसलिए अब हम चलते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को फाइंड करने के लिए हम इसी ट्रायंगल का इस्तेमाल कर देखते हैं कि हमारी रिजल्टेंट क्या होती है। क्या होती है। तो आइए अब हमारी मेजरमेंट जो है वह है तीसरी मेजरमेंट, जो आपके सामने है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रिगोनोमेट्रिकल स्टैंडर्ड एंगल्स एंड
their result. यह खास करके किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है और बाकी जो कोण होते हैं वह न्यून कोण होता है। ये आप सभी को जानकारी में है। इसलिए जब हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा की बात करते हैं तो थीटा को न्यूनतम एंगल, एक्यूट एंगल के रूप में लेते हैं। थीटा हर हमेशा एक्यूट बन जाता है और उसी के आधार पर हम इसे निकालेंगे। लेकिन साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट में कुछ ऐसे भी 90 डिग्री के एंगल होते हैं जो अभी तक न तो परिभाषित की गई है, ना ही डिफाइंड किया गया है, ना ही इसका कोई निष्कर्ष निकल पाया है। लेकिन हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक को इसी फिगर पर दिखाने जा रहे हैं जो आपके सामने है। जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का कोई ना कोई रेशियो नहीं होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 होगी। वहीं यदि हम साइन 90 डिग्री को देख लेते हैं तो साइन 90 डिग्री की रेशियो होती है और रेशियो सिर्फ उसके इक्वल साइड पर डिपेंड करता है। इसलिए हम इसे 1 वैल्यू देते हैं, 1 वैल्यू देते हैं। इसके बाद आप कॉस 0 डिग्री में चले आते हैं। 0 डिग्री में कॉस की वैल्यू 1 होती है, जबकि कॉस 90 डिग्री में इसकी वैल्यू 0 होती है। जबकि टेन 0 डिग्री एंड टेन 90 डिग्री। 10 सबसे छोटी ट्रायंगल है, एंगल है जिसमें 0 डिग्री की वैल्यू 10 में अनडिफाइंड है, इसे अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। जबकि 90 डिग्री 0 डिग्री डिफाइंड, यस डिफाइंड है, but their value become 0। 90 डिग्री अनडिफाइंड है और इसे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज वैल्यू के रूप में अगर देखें तो इसे हम इन्फिनिटी कहते हैं। इन्फिनिटी अनंत, जिसका कोई न्यूमरल वैल्यू की जानकारी नहीं है, इसको हम अनंत में लेते हैं। लेकिन साइन कॉस टेन के डेरिवेटिव्स को देख लेते हैं तो साइन कॉस टेन के डेरिवेटिव, साइन के डेरिवेटिव में आप देख लीजिए कॉसेक होगा, कॉस के डेरिवेटिव में सेक होगा और टेन के डेरिवेटिव में कॉट होगा। 10 के डेरिवेटिव कॉट होता है। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस
cosec theta means cosec 0 degree cosec 90 degree, sin 0 degree 0, therefore cosec 0 degree 0, sin 90 degree 1, therefore cosec 90 degree 1. सिमिलर रिलेशन है एंड अपोजिट रिलेशन है, ये वेल डिफाइंड है। जबकि कॉस में जब हम आते हैं तो कॉस थीटा की डेरिवेटिव होती है सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू सेक 0 डिग्री, साइन कॉस 0 डिग्री 0, देयरफॉर सेक 0 डिग्री इज 0। सेक थीटा इक्वल टू सेक 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री 0, सेक 90 डिग्री अनडिफाइंड, that is infinity। ये अनडेवलप्ड एंगुलर रेशियोज है, अनडेवलप्ड एंगुलर रेशियो है। अब आता है 10 is the shortest angle of the trigonometrical ratios in which we study tan theta equal to tan 0 degree. Tan 0 degree is 0 where, derivatives है, derivatives of tan theta is cot theta, that is cot 90 degree, that is 0 where cot 0 degree is undefined, that is infinity। तो students, you are aware for this trigonometrical some standard angle as 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree, that is helpful for the ratios, identities to prove and the trigonometrical ratios value, and also helpful for the height and distance. According to this value, you are always aware for the high scoring in board examination and competitive view.